Hello students, in today's video we have to discuss the next topic. In the previous video we have discussed up to the electric potential for a dipole. In today's video we have to start the next topic. The next topic is equipotential surfaces. So as it is clear from the name, equipotential surfaces means equipotential surfaces are those surfaces on which at every point the potential is same. So that is called equipotential surfaces. Here written a definition you can read from here. A surface at every point of which the electric potential due to a charge distribution is same. Means a surface on which the value of the potential at every point due to the charge is same is called equipotential surfaces. So if I draw here a diagram for say that this is a equipotential surfaces. Clear? And at this point, if the potential is VA, means this point is V and here is potential is VA. And at this point, the potential is VB. So if that surface is equipotential, so we can say that VA is equal to VB. Means what are equipotential surfaces? Equipotential surfaces are those surfaces on which at every point the potential is same due to the charge distribution. Is called equipotential surfaces. So next we have to represent the equipotential surfaces for the various cases. First here is a diagram. Equipotential surfaces for a uniform electric field. किसी भी uniform electric field के लिए equipotential surfaces कैसे हों? So here are the some sheets. ये first sheet है, ये second sheet है, third sheet है. First sheet का potential V1 है, second sheet का V2 है और third का क्या है V3 है. So if we want to draw the equipotential surfaces for these field line, so for these field line, the equipotential surface comes out to be the perpendicular to the electric field. So here written here, for a uniform electric field E, the equipotential surfaces are the plane which are perpendicular to the electric field. Means किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड के लिए अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? वो प्लेन होंगे जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर होंगे. अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें V1, so मीन्स इसका जो पोटेंशियल है V1 है, वी से दैट कि पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेन, पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेन एंड पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेन इज डिफरेंट. मीन्स इन तीनों प्लेन का जो पोटेंशियल है वो क्या है? डिफरेंट है. बट ऑन दैट सरफेस द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट. मीन्स इफ दैट पॉइंट इज पोटेंशियल इज V1, clear? So similarly at this point the potential is also V1. If at this point the potential is V2, similarly at this point the potential is also V2. Clear? So in that way we can say that the equipotential surface for a uniform electric field are the plane which are perpendicular to the electric field. Next we have to draw the equipotential surfaces for a isolated point charge. कि कोई भी point charge के लिए equipotential surfaces कैसे होंगे? तो किसी भी पॉइंट चार्ज को, ये कोई पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर पोलैरिटी का इसकी पोस्ट है, तो फील्ड लाइन क्या निकल रही है? बाहर की तरफ निकल रही है. तो अगर इस पॉइंट को हम सेंटर मान के क्या ड्रॉ करते हैं? कंसेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं, तो वो जो स्फीयर होंगे वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे. फॉर अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस. कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो होंगे कंसेंट्रिकल स्फेरिकल सरफेसेस. अब ये स्फेरिकल क्यों बोला, सर्कल क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा कोई भी चार्ज है जब उसको हम 3D में रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे ये चार्ज रखा है, इफ वी से दैट कि दिस इज द चार्ज, तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो चारों तरफ जाएंगी, वो यहां पे भी जाएंगी, वो यहां पे भी आएंगी, यहां पे भी आएंगी. मींस दैट इज इन स्पेस. तो अगर स्पेस में है तो वो स्फीयर बन जाएगा. नेक्स्ट आपका जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस. सेम चार्ज, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? तो ये हमने दो चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. दोनों की पोलैरिटी क्या है? सेम है, और दोनों की पोलैरिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है. तो वी ऑल नो दैट कि इनसे जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगी. आई विल ड्रॉ मैनी मोर लाइंस टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस. तो ये तो फील्ड लाइन थी. फिर से बेटा हमने क्या करना है? इनको सेंटर मान के वी हैव टू ड्रॉ द कंसेंट्रिक सर्कल. बट ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन दीज चार्जेस और ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज सर्कल आर नॉट कंप्लीटेड. ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा और ये यहाँ से बेंड हो जाएंगे. मीन्स दीज टू सर्कल, मीन्स इसका कंसेंट्रिक सर्कल या कंसेंट्रिक स्फेरिकल बॉडी, इसकी कंसेंट्रिक स्फेरिकल, यहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया और ये शेप आएगी यहाँ पे. एक्चुअली में अगर सिंगल चार्ज होता तो इसने ऐसे आना था, ये सिंगल चार्ज होना तो इसने ऐसे कंप्लीट होना था सर्कल. बट ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेज, तो ये जो आपका रीजन बनेगा ये आपके आ जाएंगे, दीज
is the representation of equipotential surfaces for the pair of charges. अब ये तो पेयर ऑफ सेम चार्जेस था फॉर द अपोजिट चार्ज प्लस चार्ज एंड द माइनस चार्ज मीन्स फॉर अ डायपोल you have to see it from the book and draw by yourself. If you face any problem while doing this topic, you can ask. In the next video we will discuss that problem. Next is properties of equipotential surfaces. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहां से बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वो 1 नंबर में आ सकता है और वो 2 नंबर में हो सकता है। तो फर्स्ट आपका यहां पे पॉइंट है, नो वर्क डन ऑन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब हम किसी चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो हमें वहां पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो ये पॉइंट है, इसको हमने प्रूव करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी से दैट कि दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज VA। ये कोई पॉइंट है जो पोटेंशियल क्या है बेटा यहाँ पे VB है। अब इस चार्ज को हमने यहां से यहां मूव कराना है, मतलब यू हैव टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम VA टू VB। अब यहां पे अपने को कह रहा है कि A से पॉइंट, इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं, पोटेंशियल की डेफिनेशन VAB। क्लियर, VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB। अगर चार्ज को हम कहां ले रहे हैं, VA से VB तक ले रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे VB माइनस VA, लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस है। उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V की वैल्यू W/Q है थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा W या WAB, वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B अपॉन में चार्ज Q की कोई चार्ज Q था। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी पीछे प्रूव करके हैं व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू किसके होगा, VB, बिकॉज इट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA किसके इक्वल है, VB के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, VB माइनस VB इज इक्वल टू WAB/Q। तो दीज टू टर्म कैंसिल ईच अदर, तो हियर कम्स आउट टू बी 0, लेकिन चार्ज तो 0 नहीं है, दैट सरफेस हैव चार्ज। तो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर, सो वी कैन से दैट कि जो WAB होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, विच वी हैव टू प्रूव कि नो वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपको कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कि जो E होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल किया था एक DW मींस वर्क डन टू मूव अ चार्ज दैट इज इक्वल टू F इंटू में DR। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि ये मान लो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये चार्ज यहां पे था, हमने इसको इतना मूव करवा दिया यहां तक लेके, तो ये डिस्टेंस DR है। तो चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन तो होगा ही, तो DW इज इक्वल टू FDR। तो आपको पता है जो वर्क डन होता है F डॉट S कोस थीटा होता है बेटा वर्क डन, इसके साथ हमने लगा दिया कोस थीटा। ठीक है, अब हम F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि बिकॉज इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो जो E होता है वो आपका होता है F/Q, E क्या है आपका F/Q। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज Q इंटू E। तो DW कम्स आउट टू बी Q इंटू में E इंटू में DR इंटू में कोस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं DW, इस चार्ज को यहां से यहां मूव करवा रहे हैं। हमने ऊपर प्रूव किया था कि अगर एक चार्ज को हम दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो उसके लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव सेड पॉइंट कि DW वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो ये 0 हो गया, तो यहां से वैल्यू आ गई QE डॉट DR कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। अब देखते हैं क्या यहाँ पे Q 0 है, नहीं, चार्ज की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्या हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ये भी 0 नहीं हो सकता। क्या हमने DR, क्या चार्ज को हमने मूव करवाया है, तो DR मींस द वैल्यू QEDR इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल कौन है, कोस थीटा 0 के इक्वल है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0, और सबको पता है कोस थीटा किस पे 0 होता है, कोस होता है π/2 मतलब 90 पे।
तो cos 90 तो थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के होता है परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रिप्रेजेंट अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्या बात कही इसने कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को। कैसे करेंगे? हमने कल पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टॉपिक है, E होता है आपका dv बाई डी आर, दिस इज ऑफ नेगेटिव, तो वी विल टेक द मैग्नीट्यूड। हमने क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया, तो E की वैल्यू आ गई यहाँ पे dv बाई डी आर। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर आपका जो पोटेंशियल है वो तो क्या है? सेम है एट एवरी पॉइंट। सो कहीं ना कहीं जो E की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रही है? R पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो ई आर से में यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि इफ E इज स्ट्रॉन्ग डी आर विल बी स्मॉल। अगर E क्या है? स्ट्रॉन्ग है तो डी आर क्या होगा? स्मॉल होगा। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि मान लो ये कोई चार्ज है बेटा, अगर इसका चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है तो इसके जो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मींस दीज कंसेंट्रिक सर्कल आर वेरी क्लोज। ठीक है, मींस जो ये आर है इनके बीच का जो गैप है वो स्मॉल है। फिर अगर ये चार्ज वीक है तो इसके जो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे दैट हैव अ लार्ज गैप बिटवीन देम। तो E और डी आर या E और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या है? ज्यादा है, तो वहां पे E की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं, जैसे कि ये है, ये हमने ड्रॉ कर दिए कि ये जो आपके हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इस गैप को हम देखते हैं, इस गैप को हम देखते हैं, दीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम, मीन्स यहाँ पे R क्या है? स्मॉल है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो R है वो लार्ज है। तो इस रीजन के अंदर जो E होगा, E की वैल्यू क्या होगी? वो स्मॉल होगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकली? यहां से जो कंक्लूजन निकली है वो निकली है कि इफ E स्ट्रॉन्ग डी आर विल बी स्मॉल, सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर, thus the equipotent surfaces are closer in the region of strong electric field। कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनके बीच में जो गैप होगा वो कम होगा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और अगर किसी भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो गैप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वो क्या होगा? लार्ज होगा। ठीक है, वन इन दिनेश बुक वन क्वेश्चन इज गिवन देयर, फ्रॉम हियर यू कैन सी इट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उसी पॉइंट पे ग्रेटर होगा जहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या होगा? कम होगा, बिकॉज E एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट है द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट। कह रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा यस, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इफ द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो मींस वी कैन से दैट एट दैट सरफेस और एट दीज टू सरफेस हैव द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ E, कि दो वहां पे E की डिफरेंट वैल्यू आ सकती हैं, बट फॉर अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस द E इज सेम फॉर ऑल। क्या पॉइंट कहा इसने उसको बता देते हैं आपको, आई विल एक्सप्लेन इट। If the two equivalent surfaces intersect, then at the point of intersection there will be a two value of electric field, or there will be a two value of electric potential due to a point charge. So it is not possible, hence two equivalent surface cannot be intersect। अब मैं आपको बता देता हूं क्या कहा उसने। जैसे भाई एक ये पोटेंशियल था, इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर 5 वोल्ट होगा। फिर हमने यहां पे एक और लेके आए, मान लो ये 6 वोल्ट का है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास दो V की वैल्यू है, एक तो है 5 वोल्ट और एक आपकी कितनी है? 6 वोल्ट। अब अगर ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, इफ दिस पॉइंट इज कॉमन इन बोथ, तो वी नो दैट कि दिस पॉइंट एट 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 एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस द वैल्यू ऑफ V इज 5, and for that surface the value of at every point is 6, but at this point we have seen two value, one is 5 another is 6, so this is not possible in case of equipotential surfaces। ये equipotential surface के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि equipotential surface के एवरी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल क्या है? सेम होना चाहिए। अगर दो पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां पे पोटेंशियल की दो वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अब मैं आपको एक पीछे टॉपिक में लेके चलते हैं,
in the previous video we have discussed a topic. The topic is value of potential for a electric dipole. So we have a formula, V is equal to P cos theta divided by 4 pi epsilon naught. If you take an R, here comes out to be R. If you take an X, here comes out to be X. तो if I take an X, तो here comes out to be X square. तो ये आपकी थी इक्विटोरियल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर थी? इक्विटोरियल के ऊपर। क्लियर? अब कहीं ना कहीं जो V की वैल्यू है वो इस थीटा पे डिपेंड करे। तो इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू एट द एक्सियल, इफ हम एक्सियल पे निकाल, तो ये पॉइंट आपका होगा एक्सियल का। तो कल हमने ये पॉइंट ऊपर मानना था यहाँ पे, तो इस एंगल को हमने थीटा कहा। क्लियर? इसका डिस्टेंस यहां से हमने x लिया था। सिमिलरली इफ वी टेकन दिस पॉइंट P, तो दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस x. So at that point the angle between the dipole and this point P is theta. But in that case, in this point P, the angle between the dipole and this x, or in that point P where we have to find the potential, is comes out to be 0. तो थीटा कितना आएगा आपका? 0 आएगा, 0 डिग्री। तो जो V आपका एक्सियल के लिए हो जाएगा वो आपको आएगा P cos 0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। और बेटा जो कोस 0 आपका होता है 1 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल एट द एक्सियल। यह है साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इक्विटोरियल के साथ में कोस आएगा। अब बात यहां पर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तब वैल्यू क्या आएगी? तो इफ यू पुट हियर वैल्यू V इज इक्वल टू P cos पाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो दिस इज cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 इज 90, 90 0, तो here comes out to be 0, means at a point perpendicular to the dipole the potential is 0। पोटेंशियल क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब हम एक रिलेशन करेंगे, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V and E. V here is the potential and E is the electric field. E आपका यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हमने क्या करना है कि we say that कि this is a charge Q and this is a charge Q naught. Both are of the same polarity. तो इनके बीच में जो फोर्स होगा that is of repulsive nature, तो ये F इधर आ जाएगा। But we want to move this charge in that direction. We say that this charge is moved by a distance of dr. So this is the direction of F and this is the direction of displacement. So the angle between the force and displacement is 180 डिग्री। क्लियर? अब ये चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा। So we have to find the work done. So we say that for this small displacement, the dW is the work done. So this dW we can easily write here. This is equal to F into में dr cos theta, theta is 180. Clear? Now, so if this charge Q have electric field and this charge experience a force, so we can easily find that what is the electric field experienced by this, the electric force experienced by this charge Q naught. So we have a relation E is equal to F by Q naught. So if we want to find the F value, what is the force experienced by this charge, so we can easily find from here. So F comes out to be, that is Q naught into में E. So we put here the F value, this comes out to Q naught E dr cos 180, that is of -1. This comes out to be dW. तो dW आपका आ गया यहां से Q naught E dr of माइनस, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस Q naught को उठा के उधर ले जाते हैं, तो dW अपॉन में Q naught is equal to minus k E dot dr। अब हमने पीछे टॉपिक किया था V इज द पोटेंशियल विच इज इक्वल W चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। So if this work done is dW,
So this is D and this is D. This is charge is Q naught. So means dW by Q naught we can write dV. So dV is equal to minus K E dr. So if we want to find the relation, we can easily find from here. The relation comes out to be E is equal to minus K dV by dr. Clear? In the equipotential surfaces, we write this formula already. So E is equal to dV by dr. So E is inversely proportional to dr. Means if R is small, E is large. If R is large, E is small. And this is known as a potential gradient. इसको हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब बेटा चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस, कि डिस्टेंस के साथ में क्या चेंज आ रहा है पोटेंशियल में. यू हैव सीन मैनी फॉर्मूला रिगार्डिंग दिस. इट कैन आल्सो V by L आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. E इज इक्वल टू आपको dV by dx भी कहीं ना कहीं मिलेगा. तो ये सारे के सारे जो चेंज हैं मीन्स चेंज इन V विद रिस्पेक्ट लेंथ, चेंज इन V विद रिस्पेक्ट x, चेंज इन V विद रिस्पेक्ट r. सो दीज ऑल टर्म आर potential gradient. So today in this video we have discussed up to the properties of equipotential surfaces. So today you have to complete it. In the next video we will meet with the next topic. The next topic is potential energy for a system of charges. So it is over for today. See video clearly, properly, and prepare your notes. If you have any doubt, you can message me. In the next video we will try to clear your doubt. So it is over for today.